Good evening, everyone. Welcome you all to Accomplish IS channel. So today we are starting with the ancient history, and as we know, ancient history forms the major part of the prelims paper as well. And with the ancient history, we will be starting with the two topics today: Indus Valley Civilization and Mahajan Paths. So two topics would be dealt in detail along with the PYQs. So our main agenda is just to cover the topics from the head to toe and don't leave the important topics. Okay, though some points can be left, but we will be trying to PYQs and जो important topics है from the NCRTs that should not be left anyhow. Okay, so now let us begin with the discussion, right? So first question is very easy question. Where is the Desalpur site in the present India? Gujarat. Yeah, so Gujarat is the correct answer. And where is the Daimabad? Maharashtra. Maharashtra. Perfect. Okay, so Daimabad is in Gujarat. Daimabad is in Maharashtra and Desalpur is in Gujarat. Okay, there is one more question. True or false? Okay. So there were many temples in the Indus Valley civilization. True or false? False. Uh, Good. Why so? क्यों नहीं थे temples वहाँ पे? टेम्पल्स और पैलेसेस नहीं थे क्योंकि वो रिलीजन ही फॉर्म नहीं हुआ था उस टाइम पे. वैदिक एज में शुरू हुआ था रिलीजन. Correct. Okay. The next question is, there was the evidences of the horses. Like it is a most contagious, but still, horses was there. Yes, correct. हाँ करेक्ट. वो एक सूटाडोर करके थी ना एक साइड गुजरात में, वहां से हॉर्सेस के एविडेंस मिले हैं. वहाँ पे थी. हाँ. Yeah, evidence मिले, but the people were not well versed with the horses. Means they didn't know कि कैसे horse को use किया जाता है या कैसे उसका transportation and all में use हो सकता है. Okay. Lothal site was located on which river? Lothal. Bokwa River. And where it is in present India? Gujarat. Cool. Okay. Now anyone would be asking questions? Yes, I want to ask one question. Where is Sothi site? That is an early IVC site. Sorry sir. It is SOTHI, Sothi site. Don't know sir. It's okay. It is in Rajasthan. Okay sir. अच्छा, where are the beads factory found? Bead making factories. Chanudaro? दो प्लेसेस है मैम, एक चानुदारो और एक लोथल. Okay. Lothal was also a dockyard and important port city of the Harappa. And Chanudar is also a city जहाँ पे citadel नहीं था. Means that is the only place in IVC जहाँ पे citadel नहीं था. Largest Indian site of Indus Valley civilization. Rakhigadi. Earlier it was Ganedi wala, then later on it is Rakhigadi. हाँ करेक्ट मैम. कौन सी रिवर पे है और कौन से स्टेट में है? Rakhigadi is in Haryana. River I don't remember. घग्गर रिवर. हाँ घग्गर सर, राइट. अच्छा, रेड सैंडस्टोन वाला जो मेल टॉर्सो था वो कहाँ मिला था?
हड़प्पा। हाँ करेक्ट मैम। And Mohenjo-daro is that bronze lady, dancing lady. यस। नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। Northernmost would be Manda. Shotugai. And if we talk about India, तो India में the northernmost is Manda. करेक्ट मैम, ये चेनाब रिवर पे है मांडा। एक PYQ बोल देता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन है दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। सेकंड है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। और थर्ड है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। Only second statement is correct. हाँ यस मैम, ओनली सेकंड इज करेक्ट। अच्छा, एक और PYQ है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट। फर्स्ट है चानूदारो, सेकंड है कोडीजी, थर्ड है सोहागोरा और फोर्थ है देसलपुर। Sohagara is Gora. the answer. Sogora. हाँ यस सर। ये सारी जो साइट इनकी लोकेशन भी बता दीजिए, मतलब चानूदारो कहाँ है, कोडीजी कहाँ है। Chanudaro is in Sindh. Desalpur we discussed, right? वो गुजरात में है। और कौन सी साइड थी? कॉडीजी। सो कॉडीजी इज इन प्रेजेंट पाकिस्तान के आसपास वाला जो है। एंड वन मोर कौन सी साइड थी? सोहगोड़ा। एक्चुअली सो दैट इज इन प्रेजेंट यूपी। एंड सोहगोड़ा किस लिए जाना जाता था? जो मौर्यस के टाइम में ना फेमाइन कोड जो था ना, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा फेमाइन आ गया था, तो उसके लिए लेटर ऑन कोड बना था। तो उसका मेंशन भी वो इंस्क्रिप्शन पे सोहगोड़ा कॉपर प्लेट। हाँ यस मैम। ओके के और PYQ है 2021 का ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Options हैं धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और रोपर। Dholavira is right. धोलावीरा, यस। एंड ऑल्सो ये उस टाइम में काफी न्यूज में भी था, क्योंकि इससे हेरिटेज की लिस्ट साइट में डाला गया था, इससे वो गमप्पा टेम्पल तेलंगाना वाले को। हाँ यस मैम करेक्ट। रोपर कहाँ पर है ये? कालीबंगन और रोपर। कालीबंगन इज इन राजस्थान ऑन घग्गर रिवर एंड रोपड़ इज इन पंजाब भोगवा। नो नो, भोगवा नहीं है। वेट, कौन सी रिवर है रोपड़ का? सतलज। सतलज। हाँ करेक्ट मैम, सतलज। रोपर है ये फर्स्ट साइट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस को ये मिली थी, फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, अभी आपने जैसे साइट्स बोली है ना, तो वही साइट्स भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना, मतलब जो PYQs में आई है। जैसे एक तो धोलावीरा है, रोपड़ है, तो प्लीज सभी 2-2, 3-3 पॉइंट्स को प्लीज ट्राई टू कंट्रीब्यूट कि रोपड़ में क्या क्या हुआ था। रोपर एक तो वो फेमस है, वो जो ह्यूमन बरियल्स थे ना, उनके साथ डॉग्स भी मिले थे उनके। और एक यही कि वो फर्स्ट साइट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और एनीवन, इफ एनीवन वांट टू ऐड समथिंग। यस, एंड ऑल्सो रोपड़ से ना नियो पैलियोलिथिक वाली जो साइट्स है, उसके भी कुछ एविडेंसेस है, वो रोपड़ में भी मिले थे। ठीक है, सो रोपड़ में इतना ही है। देन धोलावीरा के लिए रिगार्डिंग लाइक 5-6 पॉइंट्स। हाँ,
धोलावीरा एक तो वही उसका जो वाटर रिजर्वायर था उसके लिए फेमस है वो, और वो लूनी रिवर पे है और गुजरात में है। और एक ये जो है वो जैसे जो बाकी सब सिटीज थी आईवीसी की, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लोअर टाउन और अपर टाउन, जिसको सिटाडल भी बोलते थे। लेकिन ये ओनली साइट थी जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अपर, मिडल और लोअर। करेक्ट। वीरा से साइन बोर्ड भी मिला था, साइन बोर्ड जो रास्ता बताने वाला साइन बोर्ड होता है वो भी मिला था। परफेक्ट। सो साइन बोर्ड भी मिला था, वाटर हार्वेस्टिंग भी मिला था। एज द जोकर सेड वहां पे 3 पार्ट्स भी थे, सभी में 2 थे, सो 3 पार्ट्स भी थे। एंड अभी जो सलील शुक्ला ने बोला ये साइन बोर्ड वाला ना, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, ये 1998 के आसपास का पीवाईक्यू उन्होंने ऐसे 4 मतलब ना 4 साइट्स को दे दिया था। एंड उनके रिस्पेक्टिव अपोजिशन में ना वो दिए थे कि वहां से क्या डिस्कवर हुआ था। सो उसमें से एक में साइन बोर्ड है। मतलब अगर किसी के पास अभी पीवाईक्यूज बैंक का एक्सेस है तो प्लीज जस्ट चेक आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम हड़प्पा, ठीक है? उसमें ये भी एक क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर लाइक। Okay, so Dholavira we have discussed. Now next is Code DG. Code DG के 2-3 points. ओके, सो कॉड डीजी जो है मतलब प्रेजेंट सिंध में है, ठीक है? उसके बाद जो कॉड डीजी है इससे काफी पैलियोलिथिक साइट्स एंड पैलियो एंड जो बीच का था ना मेसोलिथिक, उससे हमें काफी चीजें मिली है। उसके बाद 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज की बैंगल्स भी यहाँ से मिली है, ठीक है? एंड उसके बाद ना जैसे जो उस टाइम का कॉड डीजी था उसको फोर्टिफाई किया गया था, तो कॉड डीजी से फोर्टिफाइड जो वहां की छोटे स्लम्स बस्तीज बोलते हैं जिसे, उसके भी एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है? तो कॉड डीजी का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड एक आधा अगर आपको एक्सकवेशन याद रहे तो, ठीक है? और कौन से साइट थी द जोकर, रिपीट करना जल्दी। एक ये चानूदारो है, कालीबंगन। ओके, सो कालीबंगन कोई बता सकता है? कालीबंगन तो बहुत कुछ मिला था। एनीवन रिमेम्बर्स? हाँ, वो पहला वो प्लोइंग टूल्स मिले थे, मतलब प्लोइंग का एविडेंस मिला था, और एक बैंगल मेकिंग फैक्ट्री भी थी, और मल्टीपल क्रॉपिंग के एविडेंसेस मिले थे, और एक फायर अल्टर्स मिला था। घग्गर रिवर पे है ये। स्केल्टन मिला था कैमल का यहीं से। कैन यू प्लीज रिपीट सलील, क्या बोला अभी आपने? स्केल्टन ऑफ? स्केल्टन ऑफ कैमल। कैमल का स्केल्टन, ओके, यस करेक्ट। और कोई पॉइंट्स? ओके, सपोज इफ आई आस्क कि जो हड़प्पा का टाइम था उस टाइम में दे हैड नो नॉलेज ऑफ द पपेट्री, इज इट करेक्ट और नॉट? पपेट्रीज का नॉलेज था क्या उन्हें? कठपुतली जिसे बोलते हैं हम। होगा मैम, ये जो सब ये खेलते थे ये कठपुतली में ही आते हैं, जो टॉयज बनाते थे। ठीक है, तो उनको कठपुतली का नॉलेज था, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन, क्या उन्हें जो टॉय कार्ट होता है उसकी नॉलेज थी, व्हील्स की? हाँ, यस करेक्ट, वो उनकी पोट्री भी व्हील से बनती थी। यस, उनकी जो पॉटरी थी, ठीक है, उसमें भी व्हील एंड ऑल सब हुआ करता था। ओके, एनी मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग बनवाली? हाँ, ये एक ओनली साइट है जहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी ना वो रेडियल फॉर्म में थी, मतलब ऑल डायरेक्शंस में थी। और वही लैपिस लजूली करके एक जो था मटेरियल, उससे ही अपने टॉयज या वो हाँ बीड्स बनाते थे, सील्स बनाते थे। वो लैपिस लजूली भी यहाँ मिलता है।
और बार्ले वार्ले ये सब यहाँ पे एविडेंस है। एंड ये साइट कौन से स्टेट में है? ये हरियाणा घग्गर रिवर पे ही है। ओके। नावली में एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से जो के बहुत अच्छे एविडेंस मिले हैं, जो खाने का होता है ना जो। करेक्ट। यस, एंड वन मोर, इधर का ना जो ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, दैट वाज लाइक रियली गुड। बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, सॉकेट पिट एंड ऑल एवरीथिंग उस पे लगा होता। ओके, कौन सी ऐसी साइट है जहां से चावल का सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम पता लगा था? राइस। लोथल। Correct. So Lothal. Okay, and Lothal is in which state? And some like Gujarat. exploration site. लोथल ये भोगवा रिवर पे है और गुजरात में है, और ये एक इम्पोर्टेंट नेवल ट्रेड साइट भी थी, और वही राइस का एविडेंस है, डॉकयार्ड है, और इसमें एक ये डबल बरियल करके मिला था, मतलब मेल और फीमेल्स टुगेदर बरी हुए थे, तो वो भी एक एविडेंस है यहाँ से। एंड ऑल्सो जो आज के वेट एंड मेजर्स होते हैं ना, जिसपे वेट किया जाता है, वेट बैलेंस एंड ऑल, उसके भी बहुत ज्यादा इधर से मिले थे एविडेंसेस लोथल से। देन आफ्टर दैट फायर ऑल्टर तो ऑलमोस्ट सभी जगह से मिला था, बट यहाँ से भी मिला था एंड कालीबंगन से मिला था, ठीक है। उसके बाद एक क्रो एंड एक फॉक्स का भी मिलता है। किसी को याद है क्रो एंड फॉक्स? ओके, क्रो फॉक्स है, ठीक है, तो उसका हमें एविडेंस मिलता है लोथल से, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ना पॉटरी है, पॉटरी पे दोनों बने हुए हैं, तो उससे पता लगता है कि ठीक है, उनको नॉलेज था कि क्रो एंड लाइक ना लोमड़ी एंड ये सब होते हैं, ठीक है। एंड डॉग के फुटप्रिंट्स कहाँ से मिले हैं जिसमें वो दूसरे पीछा कर रहे हैं? किसके फुटप्रिंट्स? डॉग, ये बिल्ली और चानूदारो, कुत्ते। चानूदारो है सर। हाँ सर, हाँ जानवर। रिपीट करना, क्या था क्वेश्चन, क्या था? कैट एंड डॉग के फुटप्रिंट्स, जिसमें वो जो डॉग है वो पीछा कर रहा है कैट का। ओके, चलो चलो। उनके जो पंजों के निशान है ना, वो किसी एक ब्रिक्स पे ले रखे हैं, वो इस टाइप का एविडेंस है। Puck marks of dog running after cat. और एक और ये जो साइट्स थी ना, इसमें काउज नहीं मिलेंगे, मतलब आपको कि जो और बाकी जो सील्स थे ना, उनपे और एनिमल्स थे, जैसे एलिफेंट था, राइनो था, लेकिन काउज या लायंस नहीं मिलेंगे किसी पे भी। बफेलोज मिलेंगी, काउज नहीं मिलेंगी। यस, जो लॉयन था वो तो पूरे हड़प्पा में नहीं था, ठीक है। काउ का भी ना, काउ का बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है, लाइक मैनी सोर्सेज मेंशन कि था कहीं पे, तो वो आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है व्हाट यू कंसिडर, बट यस काउ नहीं थे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वो जो पशुपति वाला सील है, उस पे 5 हैं टोटल, BRET, देन डी डी वो उसमें जो बफेलो हो गया, फिर राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, ओके। एंड देन डोंट कंफ्यूज इट विद दैट सारनाथ पिलर का जो कैपिटल है, उस पे अलग वाले हैं BHEL में। एलिफेंट है, लॉयन है, हॉर्स एंड बुल है, सो बोथ आर डिफरेंट, जस्ट डोंट कंफ्यूज विद एनिमल्स। आफ्टर दैट एनीथिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर IVC में? ओके, एक साइट जैसे वेट लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। जो IBC है, ठीक है, IBC के 3-4 पॉइंट लेटर्स डिस्कस इन ब्रॉड मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल सील्स उस टाइम में कैसी होती थी, देन पॉटरी का एंड रिलीजन का, ओके। ये तीनों सेक्शन को जल्दी से कोई भी एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या होता था तीनों में। तो सील्स जो थी ना, वो काफी तरीके से यूज करते थे उन्हें, वो ट्रेडमार्क की तरह या ट्रेड में भी यूज कर लेते थे, और रिलीजियस सिंबल की तरह भी यूज करते थे, और वो काफी सारी चीजों से बनाते थे उन्हें, मतलब गोल्ड, सिल्वर,
स्टेटाइट सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, और एक लैपिस लजूली ये यूज़ करते थे। और क्या था, एक ये पशुपति सील मिली थी, उस पे एनिमल्स भी थे। वो जो पशुपति थे वो एक सिटिंग पोजीशन में बैठे थे, योगिक पोजीशन में। वो पशुपति सील फेमस है। और ये मोहनजोदारो में मिली थी पशुपति सील। ओके, वेल डन। ठीक है, इसमें इतना ही है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजन, मतलब हाउ दे यूज टू वर्शिप एंड लाइक क्या क्या सोर्स होता था उनके वर्शिप का। अच्छा, वो मेल और फीमेल दोनों गॉडेसेस को वर्शिप करते थे। और हाँ, दोनों गॉडेसेस को वर्शिप करते थे। और क्या होगा इसमें, एम्यूलेट्स भी यूज वेट, इफ आई से कि उस टाइम में भी लाइक ना ट्रीज की वर्शिप होती थी, इज इट करेक्ट? हाँ, यस मैम, करेक्ट। ओके, तो उस टाइम में पीपल जो ट्री होता है वो बहुत ज्यादा ना लाइक सैक्रेड माना जाता था। एंड देन डक डक जो बर्ड होता है, ठीक है, उसको भी वो वर्शिप करते थे। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द उनका सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो सबसे पहले उनका मेजर इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, मतलब लाइक व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड एवरीथिंग। हाँ, एग्रीकल्चर था, और जो ये इनका ट्रेड भी था दूसरे कंट्रीज के साथ। और वो बार्टर सिस्टम से ट्रेड करते थे। और कुछ कुछ आइटम्स वो, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता था उसे वहाँ भेजते थे। और इंपोर्ट में वो ये गोल्ड, सिल्वर और ये सब आता था। ओके, एंड वो कम्स द वन क्वेश्चन, जो आईवीसी के लोग थे, ठीक है, दे हैड द नॉलेज ऑफ द आयरन प्लो, ट्रू फॉल्स? सर फॉल्स। आयरन क्लॉ की नॉलेज नहीं थी हमें। ये वैदिक पीरियड में आया था। करेक्ट, यस। जोकर, यू वर आस्किंग सम क्वेश्चन आई गेस दैट टाइम। वो जो ट्रेड था वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ होता था उनका। यस, एंड उनकी सोशल लाइफ कैसी थी? जो सोशल लाइफ में जो मैन थे वो ये पहनते थे कुछ कुछ इयररिंग्स को छोड़ के। और ये जो पैर में पहनते उसको छोड़ के बाकी सब दोनों वुमेन और मैन और वुमेन दोनों पहनते थे। और बाकी सिर्फ वुमेन पहनती थी। और टॉयज थे खेलने के लिए। हाँ, टॉयज थे उनके पास खेलने के लिए टेराकोटा के। टेराकोटा से ये पता चलता है कि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्की नहीं थी। Okay, correct. Now I would be asking the sites back to back. Okay, just try to answer कि state कौन सा होगा. Okay, so first one is Soikotara, गुजरात, Jaisalpur, गुजरात, Hadappa, पाकिस्तान, Mundigak, Mundigak is in Afghanistan. Then next is Shautughai, अफगानिस्तान, Balakot, राजस्थान, Balakot is in Pakistan. ओके, Then next one is Rakhigadi,
हरियाणा. मीताथल, मीठाथल इज इन हरियाणा एंड कालीबंगन ये साइट्स तो कॉमन है. बड़ा गांव कहाँ पे है? बड़ा गांव यूपी. ओके, जस्ट मेंशन कर लेना आप. ये जो कुछ कुछ साइट्स हैं जो नहीं पता या नहीं सुनी है, सो जस्ट मेंशन देम समवे. ओके, हुल्लास बड़ा गांव इज इन यूपी. देन आफ्टर दैट एक संघोल है. संघोल इज इन पंजाब. yes, संघोल इज इन पंजाब. ओके, देन चन्नू दाड़ो, आमगुई, मोहनजोदाड़ो, कौडीजी ये सभी सिंध में. ओके, एंड डाबरकोट. सॉरी, डाबरकोट. डाबरकोट इज इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान. यस, करेक्ट. और एक इनकी एक साइट में यमुना रिवर पे भी है, वो कौन सी है? वही इनकी सबसे ईस्टर्न साइड भी है. आलमगीर पुल है ना, वो है, वो यूपी में एकदम ईस्ट है. तो जो यमुना रिवर है ना, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है हिंडन, है ना, HINDON. तो हिंडन वो है ना, वही वाला आलमगीर पुल पे है, ईस्टर्न साइड. यस मैम, वही ईस्टर्न, सबसे ईस्टर्न मोस्ट है और यमुना पे है आलमगीरपुर. एंड मालवान साइट. मालवन इज इन गुजरात. यस. एंड इट इज अ पोर्ट आल्सो. Anything left in this chapter? Shall we move to next one now? कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं. Okay, thanks everyone for joining this session. Now we will be discussing the Mahajan Bazaars. Okay, just give me 2 minutes.